Assalamu alaikum class 10th. We'll start chapter number 12, coordination and control, in the first lecture in the month of July. Human as a living organisms या फिर किसी भी developed living organisms के अंदर कोई भी organ या कोई भी system या कोई tissue independently work नहीं करता, जबकि बल्कि वो एक दूसरे से coordinated होते हैं और coordinate होके एक function perform करते हैं. You can read from this first paragraph. These activities are coordinated. Coordination also enables the organism to respond to happening in the world around it. Coordination environment में होने वाली activities को response देने के लिए भी कारआमद साबित होती है. Coordination की एक example डिटेल से डिस्कस की हुई है जो कि मूवमेंट है. जब हम मूव करते हैं हमारे मसल्स कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है. मस्कुलर सिस्टम एक सिस्टम है. जब बॉडी रन करती है 100 मसल्स टू मूव लेग आर्म बैक. उसके बाद नर्वस सिस्टम भी कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर सिस्टम के साथ. नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए सेंस ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करता है, आइज़ को फोकस करने में हेल्प देता है. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस, पावर एंड लेंथ ऑफ टाइम. Such activities involve many kinds of coordination. For example, breathing and heartbeat rates are increased, blood pressure is adjusted, extra heat is removed fast from the body. How does this happen? We'll discuss in this chapter. There are two types of coordination. Nervous coordination brought about by nervous system, and chemical coordination that is brought about by endocrine system. That is a system of hormones and glands in our body. Coordinated action has 5 components. You can see. Two types of coordination: nervous coordination and chemical coordination. Coordinated action has 5 components. These components are stimulus, receptor, coordinator, effector, response. Stimulus कोई भी environmental activity, कोई भी सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में होने वाली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे सिस्टम को किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करे, डैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस. स्टिमुलस की बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है. What happens when we touch a snail? We might have seen the flowers of sunflower plant moving towards the sun. That is, sun is a stimulus for sunflower plant. What could be the reason for this? Torchlight are all factors that bring about certain responses in living organisms. These factors are called stimuli. We define a stimulus as any change in environment, external and internal, which can provoke a response to an organism. More examples of stimulus are heat, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शन. ये स्टिमुलस की एग्जांपल. नेक्स्ट कंपोनेंट है रिसेप्टर. रिसेप्टर बॉडी का वो ऑर्गन या वो टिश्यू है जो कि जैसे स्किन है, वो बॉडी का वो पार्ट जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा. स्टिमुलस जैसे आइज़ हैं वो साइट के स्टिमुलस को रिसीव करेंगी, ईयर्स हैं वो साउंड के स्टिमुलस को रिसीव करेंगे. इसके अलावा नोज़ है वो स्मेल के स्टिमुलस को, केमिकल्स प्रेजेंट द एयर डिटेक्टेड बाय द नोज़ एंड सो ऑन. द ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर. ये रिसेप्टर की डेफिनेशन और ऊपर एग्जांपल्स गिवन है. देन कोऑर्डिनेट, वो वाले ऑर्गन्स या वो वाले पार्ट्स ऑफ बॉडी डेट रिसीव इंफॉर्मेशन फॉर रिसेप्टर्स. इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे और मैसेजेस सेंड करेंगे, यानी उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे. पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन. इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द कोऑर्डिनेटर्स. They receive information, send messages through neurons in the form of nerve impulses. On the other hand, a chemical coordination, and various endocrine glands play a role of coordinators. They receive information in the form of various chemicals and send messages by secreting particular hormones in the blood. यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेजेस कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर मैसेजेस कंडक्ट करते हैं स्पेशल हार्मोन्स. It means coordinator will interpret the information and produce response. Effectors. These are the parts of our body which receive messages from coordinator. Coordinator से messages या response receive करेंगे and produce particular responses. In nervous coordination, neurons carry messages from the coordinator brain and spinal cord to muscle and gland. Muscle and gland are the effectors in case of nervous coordination, which act as effectors. In chemical coordination, in case of chemical coordination, particular hormones carry messages from coordinators to particular target tissues which act as effectors. यानी target tissues जो हैं वो effectors के तौर पे act करेंगे. For example, hormones, nephrons are all act as effectors.
Similarly, bones and liver are also active as effectors for hormones. Response क्या है? On receiving the message from coordinator से मैसेज रिसीव करने के बाद इफेक्टर एक स्पेशल एक्शन परफॉर्म करता है. उस एक्शन को रिस्पॉन्स का नाम देते हैं. एक्चुअली वो एक्शन या वो रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेटर ही जनरेट कर रहा होता है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल, पुलिंग अ हैंड अवे फ्रॉम द समथिंग वेरी हॉट. वेरी हॉट क्या है? स्टिमुलस है. क्या पुल हो रहा है? हैंड इज़ एन इफेक्टर. और स्टिमुलस कौन रिसीव कर रहा है? स्किन स्टिमुलस रिस्पॉन्स करेगी. स्किन के सेल्स, हैंड उस पुश अवे होगा, मसल्स इन्वॉल्व होंगे. मसल इफेक्टर है. और ये है रिस्पॉन्स एक्शन जिसमें पुलिंग अवे इज़ अ रिस्पॉन्स एक्शन दैट इज़ जनरेटेड बाय कोऑर्डिनेटर्स. मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड लाइट अ रिस्पॉन्स. ये तमाम टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स हैं या एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्स हैं. तो यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स, बट बाय केमिकल कोऑर्डिनेशन से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होता है लेकिन स्लो होता है. यहाँ पे एक पूरी समरी दिखाई हुई है किस तरह रिसेप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन के केस में स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के बाद रिस्पॉन्स को स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स को अफेक्टर तक पहुंचाएगा. कोऑर्डिनेटर के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट होगा. और किस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये स्टिमुलस रिसीव करेगा रिसेप्टर, और फिर केमिकल्स मैसेज लेके जाएंगे कोऑर्डिनेटर तक, और कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और रिस्पॉन्स इफेक्टर्स शो करेगा, एक्ट करेगा, करके दिखाएगा. So that was the whole story about the chemical and nervous coordination that we'll discuss about the nervous system in detail in next class.